جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ واقعی حکومت لڑنے کے موڈ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اس بار استثناء کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا رچرڈ نکسن کو کیا وہاں پہ استثناء ملا تھا؟ یہ سوال بھی آج چیف جسٹس صاحب نے ہی اٹھایا۔ تو سر بیگ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی لڑائی شڑائی کا موڈ ان کو لگ رہا ہے؟ 15 دن مل گئے ان کو۔ دیکھیں جی، 15 دن کے بعد کوئی تھنگز ول ناٹ چینج۔ ایک قانون جب ایک وزیر اعظم پہ لگا تو وہی قانون لگے گا، کیونکہ دے کی ناٹ بی ٹو سیٹ آف رولز فار ٹو ڈفرینٹ پیپل۔ اور وہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے آج کہا بھی کہ جی آپ حل ڈھونڈیں، نہیں تو فیصلہ سامنے صاف ظاہر ہے۔ مجھے ایسے امپریشن مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی از گوئنگ آن اے کنفرنٹیشن موڈ، کہ جی کسی طریقے سے ان کو فارغ کیا جائے، اور سو دیٹ دے کین گو بیک انٹو دی الیکشن کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ 4.5 سال کا پیریڈ ہو چکا ہے، الیکشن از جسٹ راؤنڈ دا کارنر۔ اور 4.5 سال کے اندر جتنے اسکینڈلز آئے ہیں، فائنینشیل اسکینڈلز، کرپشن کے اسکینڈلز، مس مینجمنٹ، مس گورننس، اپوائنٹمنٹ آف دا کرونیز، یعنی یہ ہر چیز سامنے ہے۔ اور یہ سر ابھی وہ ریسنٹلی جو اسکینڈل آ گیا جو پاسپورٹ کا، پوری دنیا اولمپک میں جا رہی ہو، ہم بدنام ہو رہے ہیں اس میں، صرف پاکستان بدنام ہو رہا ہے۔ وہ اگر آپ بات کرنا چاہتی ہیں، آپ اگلے سیگمنٹ میں ضرور یہ بات کریں، بیکاز دس از اے میجر ڈیبیکل، کیونکہ یہ تو پوری دنیا کے اندر فلیش آؤٹ ہو رہا ہے کہ ابھی پاکستان اس میں بھی انوالوڈ ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کنفرنٹیشن موڈ میں ہے، بیکاز دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو شو۔ الیکشن میں جب آپ جائیں گے تو آپ بتاتے ہیں لوگوں کو جی ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، آپ کے لیے یہ کیا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ رمضان کا مہینہ ہے، آسما یہاں پہ کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیز نہیں ہے، کہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جتنے ملٹی نیشنل فوڈ کمپنیز ہیں یہاں پہ، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، وہ اپنی مرضی سے ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی حالت دیکھیں، آئی مین فائنینشلی دے آر ایبسولوٹلی بروک، یعنی کھانے کو پیسہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی یہ جانتی ہے کہ بھئی اگر ہم الیکشن میں گئے تو ہمیں تو کچھ تو دینا پڑے گا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو دے ہیو نتھنگ۔ یہ مانگ رہے ہیں، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ شہید ہوں اور جا کے لوگوں کو کہیں کہ دس از واٹ امپریشن آئی ایم گیٹنگ۔ آپ واقعی شہید ہونا چاہ رہے ہیں، عدالت کے ساتھ ایک طرف آپ نے محاذ کھول لیا، دوسری جانب قانون سازی کرتے ہیں، تیسری جانب عوام کو کچھ نہیں دے رہے، اور واقعی اب آپ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت۔ پہلے تو میں ان کے لیے کہوں کہ یہ فوڈ پرائس کنٹرولز جو ہوتی ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں۔ آفٹر دی 18th and 19th amendment ریسپیکٹیولی ان کا مرکز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ سوشل سروسز میں آتی ہیں، یہ آپ کے صوبے کا کام ہے۔ پنجاب 60% پاکستان کی آبادی کو ڈیل کر رہا ہے، سو دے پہلے اگر وہ اس میں آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اکیلی نہیں ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے جس کے ساتھ اور پارٹیز ہیں جن کا ووٹ بینک اس ملک میں ہے۔ اگر بدقسمتی کے ساتھ آج ان کے پاس کوئی کولیشن پارٹنر یا کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ، انہوں نے کوشش تو بڑی کی، چلیں آپ کے ساتھ سیاسی اتحادی ہیں، نہیں سیاسی اتحادی ہیں آپ کے ساتھ، اگر پیپلز پارٹی کی پالیسیز اتنی غلط ہے تو پھر اتحادی کو ہم نے کوئی سب کو حصہ دیا ہوا ہے، حصے کی بات نہیں ہے، کسی کو سندھ دیا، کسی کو کے پی کے دے دیا، حصہ دے دیا۔ عدالت کے ساتھ کیا کریں گے؟ مطلب اس کا آپ کا بات کرنے کا مطلب یہ کہ پیپل پارٹی سمیت یہ اتحادی جو ہے وہ سیاست کے قابل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں حصہ دار ہیں، اپوزیشن میں یا شراکت اقتدار میں جو فارمولا ہوتا ہے نا، بھائی جو گورنمنٹ بنائیں گے تو وہ اقتدار بھی تو کریں گے نا۔ عدالت کے ساتھ چلیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اتحادیوں کو تو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، عدالت کے ساتھ کیا کریں گے؟ عدالت کے ساتھ آپ دیکھیں، یہ عدالت کے ساتھ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ریزرویشنز شو کیے ہیں، رائٹ فرام دا جوڈیشل مرڈر آف ذوالفقار علی بھٹو، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی گیلانی صاحب کا جب ڈسکوالیفائی کیا گیا ہم نے اس کا احترام کیا، لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے؟ کنٹیمپٹ لا اگر آیا تو پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا، یہ اس وقت اس کے اوپر ہمارے خلاف آ جاتے، خاموش ہے، نیٹو پہ یہ خاموش ہوتے ہیں، کنٹیمپٹ لا پہ یہ خاموش ہوتے ہیں، ان کا مقصد تو صرف از دا انٹرسٹ آف دا چیئر۔ وہ تو اچھا، ابھی اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے پاکستان میں کہ کیا زرداری صاحب کو جب آپ نے جیل کیا تھا وہ کوئی چیز ثابت آج نہیں ہوئی، یہ پرائم منسٹر کو یہ خط لکھنا ہے، یہاں تو یہ ڈیبیٹ بھی پاکستان میں چلی ہے، کوئی رجسٹرار بھی لکھ سکتا ہے، کوئی اور بھی یہ خط لکھ سکتا ہے، پرائم منسٹر کی آپ آرڈر کیوں کریں؟ لیکن اس میں آپ اپنی کیبنٹ کو لے کر آ رہے ہیں کہ آرٹیکل 90 آپ اس میں لے کر آ رہے ہیں کہ ہم کیبنٹ ہماری کہتی ہے، لیکن اس کیبنٹ میں پرائم منسٹر کا بھی اپنا کردار ہے کہ پرائم منسٹر خود سے بھی کر سکتا ہے کام، ضروری نہیں کہ وہ کابینہ کے فیصلوں پر۔ کے اوپر اگر وہ
तो एग्जीक्यूटिव काम कैसे करेगी? चले एग्जीक्यूटिव काम कैसे करेगी शाह साहब? पहले आप मुझे बताएं, पहले हमने आमरीत के अब आप कह रही हैं, अब आप अभी जुडिशरी के मारे शाह साहब आजादी आप सुन रहे हैं हमें? मतलब पार्लियामेंट का कोई मकसद फिर नहीं है। चलें शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्राइम मिनिस्टर कोई तब्दील करने लगता है ये जी शाह साहब, पहले ये कह रहे हैं आमरीत से लड़े, अब जुडिशरी से लड़ रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ेंगे। मैंने सवाल उठाया था लड़ने के मूड में है, अब इस्तिस्ना भी आ गया। अब आपको लग रहा है फाइनली अदालत इस इस्तिस्ना को भी उड़ा देगी जिसका ये सहारा काफी अरसे से ले रहे थे? देखिए, पहली बात यह है कि आप इनकी हिकमत अमली को समझने की कोशिश करें। हुकूमत की हिकमत अमली है कि मामलात को तूल दिया जाए, मामलात को खींचा जाए, टाइम गेन किया जाए, फ्रिवलेस पिटिशंस डाली जाए और टाइम गेन किया जाए ताकि इस पर अमल दरामद ना हो सके। अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद करने को वो अवॉइड कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि कानून का हक पार्लियामेंट को है, यकीनन पार्लियामेंट को हक है, लेकिन आज देखिए, आज के आर्ग्यूमेंट्स में उनके अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जनाब अब क्योंकि नया कंटेम्प्ट का कानून आ गया है तो फिर वो जो ऑप्शन 2 था आपके पास प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में फारे करने का, वो नहीं रहा। तो इससे जाहिर क्या होता है कि जो आपने लेजिस्लेशन की, जैसे आप पहले फरमा रही थी कि हरिड लेजिस्लेशन थी, उसको पूरी तरह उस पर सोच विचार नहीं किया गया और जल्दी में एक खास मकसद के लिए लेजिस्लेशन पास की गई। आज अदलिया में, आज कोर्ट में वो मकसद, वो बदनीयती जाहिर हो गई। लेकिन शाह साहब, कल भी हमने ऐड किया था, मैं ये भी बताती चलूं अपने नाजरीन को, कल भी हमने इस पे डिबेट की थी कि ऑप्शन 1 भी अदालत ने दिया था, उसमें अगर आप अपने हलफ से रूगर्दानी करते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सामने लेकर आते हैं तो फिर आप अल्लाह के नाफरमान भी होते हैं। ये अदालत लिख चुकी है, तो उसके तहत भी शायद इनको सजा हो सकती है। चले ऑप्शन 2 पे ना जाएं तो देखिए, इनको तो सजा हर एंगल से बनती है, लेकिन इनकी नीयत क्या है? इनकी नीयत है कि हम सियासी शहीद बन जाएं। इनकी कारकर्दगी बदकिस्मती से बहुत नाकिस है, बहुत कमजोर है। जैसे कि अभी बेग साहब कह रहे थे कि इस वक्त इन्होंने, देखिए, चंद दिन पहले वादा किया गया कौम से कि सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। बिल्कुल। कल लाहौर में एहतजाज हुआ है, पूरे पंजाब में एहतजाज हुआ है कि सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग हो रही है। जो बात कहते हैं उस पर अमल नहीं कर सकते। ये इनकी नाकिस हुक्मरानी की वजह है कि लोग आज इनसे बददिल हो चुके हैं और ये एक नाकाम और नामुराद हुकूमत साबित हुई है। नाकाम और नामुराद हुकूमत आपको लग रही है? शेख साहब, आपसे मैं ये सवाल उठाऊंगी। अटॉर्नी जनरल आज अदालत में कहते हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। वजीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी कह रहे हैं कि जी अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल ठीक कहा, उनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। तो क्या ये फिर वो ये हुकूमत की नीयत इससे जाहिर हो रही है कि वो उनको इस बेंच से हटाना चाह रहे हैं और बार बार इस तरह के हमले कर रहे हैं, क्योंकि ये अब काबीना का फैसला है इसमें? मिस आसमा चौधरी, पहले तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं बैठना चाहिए और थोड़ी देर के बाद एक साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल शाह खावर साहब ने मीडिया के सामने इस बात का इकरार किया कि अदालत ने जितना अच्छा रवैया आज अख्तियार किया है, माजी में कभी इतना अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया। ठीक। अब उस अदालत के लिए जिसका रवैया उनके एक अपने वकील और अपने एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इतना आइडियल रवैया था कि आज तक उतना आइडियल रवैया किसी ने अख्तियार नहीं किया, और ऐसे आइडियल रवैये वाली अदालत को ये कहा जाए कि आपका जो सरबराह है, जो हेड ऑफ द बेंच है, वो न बैठे, तो फिर ये बताइएगा कि फिजा को कौन मसमूम करने की कोशिश कर रहा है, तनाजा कौन उठा रहा है, सही माहौल को कौन प्रागंदा कर रहा है। तो फिर अगर हुकूमत की फिर ये नीयत लग रही है तो आपको लग रहा है ये अब अदालत के साथ महाजराई की जानिब जा रहे हैं? बिल्कुल, 15 दिन तो मिल गए। अदालत पहले दिन से, मुझे इस बारे में कोई शुबे नहीं है, ये अदालत के साथ महाजराई करना चाहते हैं, इसलिए कि अदालत एक सियासी जमात नहीं है। अदालत के पास सियासी कारकुन नहीं होते। अदालत के पास एक इखलाकी कुव्वत होती है। अदालत की ताकत पाकिस्तान के अवाम है। जिस तरह अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि सारे सर्वेस के मुताबिक 18 करोड़ अवाम
की राय चीफ जस्टिस के हक में है ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के हक में है। सर मुझे अगर मुख्तसरन ये बताएंगे, हुकूमत के पास अब 3 ग्राउंड्स क्या हैं जिन पे वो अभी जो हम सुन रहे हैं, जो डिबेट चल रही है जिस पे वो खेल रहे हैं, एक वो बैनुल अक़वामी इस्तिस्ना क्लेम करते हैं, एक अपने मुल्क का जो इस्तिस्ना कहते हैं, और आर्टिकल 90 की वो बार बार बात करते हैं जिनका मिस आसमा शिराजी, मैं शुक्राने के 2 नवाफिल अदा करूंगा इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक में, अगर उन्होंने ये अदालत से इस्तिस्ना तलब कर लिया। ठीक। क्योंकि फाजिल 7 रुकनी बेंच ने एतजाज अहसन साहब को 11 मरतबा ये कहा कि अगर आप 248 का पॉइंट रेज करना चाहते हैं तो आप वो पॉइंट रेज करें, हम उसका फैसला कर देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं पॉइंट रेज करेंगे, उसका अदालत फैसला कर देगी और वो मामला या रास्ते के रुकावट नहीं रहेगी। मेरी राय में इनके पास एक ही ऑप्शन है। वो क्या सर? और वो ऑप्शन ये है कि या तो ये फौरी तौर पे खत लिख दें या फिर अगली पेशी से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें और 20वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है पार्टी से पूछकर मुकर्रर कर दे और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा वो खत लिख दे और मुल्क के अंदर एक नई क़यादत जो है वो मुंतखब होकर मामलात को उनका चार्ज संभाले और मामलात को लेकर सर बड़ी अच्छी तजावीज दी हैं। अब ये देखें ना, नियत तो साफ हो और फिर उस पर अमल दरामद हो। बेग साहब बड़ी अच्छी उन्होंने तजावीज दी, हुकूमत कर सकती है इस तरह से? वो ये नहीं करेगी, मेरा ख्याल है ये कॉन्फ्रंटेशन मोड में है और आई डोंट थिंक, शेख साहब ने एडवाइस तो बहुत अच्छी दी है बट आई डोंट थिंक सो द रूलिंग पार्टी का कोई भी इंटेंशन है कि वो इस राह पे जाए। ये मेरा ख्याल है दे आर गोइंग हेड ऑन और ये हेड ऑन जाएंगे और ये चाहेंगे किसी तरीके से कोलैप्स, ये आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो जैसे कहते हैं ना, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, जितने वजीर आजम आएंगे हम कुर्बान करेंगे। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कई दफा टेलीविजन के ऊपर पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि चिट्ठी नहीं जाएगी। लेकिन सर अदालत ने जब 15 दिन इनको दे दिए तो फिर कुछ सोच समझ के दिए ना, कुछ सोचने के लिए भी इनको। देखिए अगर अदालत कल परसों फैसला करती तो लोग कहते हैं कि जी अदालत ने टाइम नहीं दिया। आई थिंक अदालत ने बहुत पेशेंस शो किया इस केस में। आप अंदाजा इससे करें 2.5-3 साल से ये केस चल रहा है। सो मच सो जब ये केस आया तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पार्लियामेंट में ले जाएं, वहां से आप इसको रेटिफाई कराएं। वहां नहीं कर सके। यही कोalition पार्टनर्स जो बैठे हैं ये कोई तैयार नहीं था एनआरओ को रेटिफाई करने के लिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या चाह रहा था? और फिर उस केस में भी बीच में तो लोगों ने और लोग लिख भी रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम क्यों दे रहा है, ये क्या कोई मिली भगत तो नहीं? लोग इस तरीके की गुफ्तगू करना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है, पेशेंस शो किया है और मेरा ख्याल है इनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट ने कोई जल्दबाजी में कोई फैसले किए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अगर 15 दिन का टाइम दिया है, अभी भी वक्त है कि इनकी पार्टी बैठ के सोचे समझे, क्योंकि वी कैन नॉट पुट डेमोक्रेसी एट स्टेक। बिल्कुल वो नहीं हम लगा सकते डेमोक्रेसी को, जो जमहूरियत को। चौधरी मैं आखिरी बात करूंगा आपके प्रोग्राम में। जी शेख साहब, जी शेख साहब, लॉ एंड डेमोक्रेसी आर नॉट कंपीटिंग वैल्यूज। जो रूल ऑफ लॉ है वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये जमहूरियत के मोर्चे में बैठे हैं तो इनको ये पता होना चाहिए कि जमहूरियत के मोर्चे की सबसे बड़ी जो तहफ़्फ़ुज़ और पनाहगाह है वो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का जो एक साया है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की जो बर्तरी है वही डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेगी। तो अब 15 दिन मिल गया आसमा, आपको अब क्या करेंगे? 15 दिन में चलें, क्या सोचेंगे, क्या देंगे? देखिए 15 या 20 दिन की बात नहीं है ना, हमारी अदलिया के साथ कोई लड़ाई है। हमने तो जितनी अदलिया के अहकामात माने हैं मेरे ख्याल में और किसी सियासी पार्टी ने नहीं माने। एनआरओ अमल दरामद में आपने माने? एनआरओ में देखिए बेसिक पॉइंट ये है कि बेसिकली खत लिखना था। कानून बना आसिफ अली जरदारी साहब के लिए नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है। आज जज साहब अपने रिमार्क्स में कह रहे हैं, ये सामने लिखे वो उसमें वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना नहीं तो फिर सदर को भी नहीं, और वो बैरूनी सदूर की बात कर रहे हैं कि क्या उनको इस्तिस्ना मिला था? सदूर की बात की, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर आज आसिफ अली जरदारी के लिए आप इसको दूसरी तरह इंटरप्रेट करते हैं तो वो एक गलत बात है। अगर आसिफ अली जरदारी कल को सदर नहीं है, आप उनको बिल्कुल ट्राई करें जिस अदालत में आपने उनको ट्राई किया, पहले भी किया, कुछ सबूत नहीं आया। लेकिन
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये अवाम भी जस्टिस मांगते हैं, इसी अदालत से हम भी जस्टिस मांगते हैं। हम भी उतने पाकिस्तानी हैं जितने ये और सब है। क्यों हम पे एक स्टैंप लगाया जाता है कि हम अदलिया का एहतराम नहीं करते? हमसे ज्यादा अदलिया का एहतराम किस पार्टी ने किया? हमने अदलिया पे कभी कोई चढ़ाई की?